लाइक मैं से इधर उधर मूव कर रही हूँ, यहाँ फिटिंग होगी तो वेस्ट लाइन पे ढीला होगा, वेस्ट लाइन पे ढीला होगा तो ऑब्वियसली वहां से तो आएगा ही। फ्रंट पॉकेट्स होती है और बैक पॉकेट्स के बीच में जो लाइन होती है, आई मोस्टली रिकमेंड हाई वेस्टेड जीन्स फॉर पेयर शेप बॉडी। वाई? बिकॉज Hello everyone, Namaste, welcome back to my YouTube channel. My name is Sejal and today you're watching episode 1 of top 4 best denims that will suit pear shape body. So let's just begin it without any further ado. So in this video, I can say that this video is wholly dedicated to the pear shaped girls. So you might be wondering that how many types of jeans we will be discussing. So there are 4 types of jeans जो कि मैं discuss करूँगी इस पूरे वीडियो में, and वो अलग अलग पैटर्न में है और वो पैटर्न में क्या दिक्कतें आती है वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज वी नो वी ऑल गो थ्रू दैट प्रॉब्लम, और वो एक्सपीरियंस, वो सॉल्यूशंस, वो प्रॉब्लम्स सब है मेरे पास, तो वो सब मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सो आई एम हैविंग 4 पेयर ऑफ डेनिम्स विथ मी, सो लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस देम, दैट हाउ वी कैन स्टाइल एंड हाउ वी कैन फिक्स देम। दैट कभी कभी क्या होता है दैट वी ट्राई टू फाइंड आवर साइज, बट एक्चुअली हम खुद कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि हमारा साइज क्या है, बिकॉज जो एक्चुअली साइज होते हैं वो हमारी शेप के अकॉर्डिंग फिटिंग सही नहीं आती है। सो व्हाट आई डू विथ मी एंड हाउ आई सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, सो वी गोना डिस्कस इन दिस वीडियो. So make sure you watch this video till the end so that you get all the informations properly. I have also made so much hauls in my previous video, so you can check my channel for that. So these are some denims which we gonna discuss in this video, and ये चारों अलग अलग पैटर्न में हैं, so अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमें डिस्कस करने को मिलेंगे. So let's just quickly jump into the video. On first we have this amazing lilac color denim which I bought I think 2 or 3 years back when I was in school. This was from the brand I think H&M, which I bought it for my birthday I guess, and this was in the size I think 32, but I टुडे लाइक प्रेजेंटली मैं 34 साइज में हूँ, थोड़ा सा गेन कर लिया है मैंने. एंड दिस इज इन द पैटर्न ऑफ मॉम जीन्स. सो मॉम जीन्स इज वेरी आई थिंक गुड फिटिंग मानी जाती है फॉर पेयर शेप बॉडी, बिकॉज इट गिव्स यू दैट कम्फीनेस, लाइक इट गिव्स दैट प्रॉपर कर्व टू योर बॉडी जो कि हमें मिलना चाहिए. बिकॉज कुछ भी चीज़ पहनोगे सो इट विल नॉट गिव यू दैट फिटिंग वॉट योर बॉडी इज शेपिंग इन टू. इफ यू विल फिट दैट thing in your body, that will only make your body like looking very embracing and kind of making you feel good from the inside and outside too. Mom jeans is the very best option you can go for, and how it kind of makes your body embrace that its waistline is always fitting to your body. It also gives a very good fitting to your thighs, where most of our pear shape body girls face problem because it don't go up from thighs. Sorry if you're kind of feeling weird about my voice because I am going through viral. It's okay. I felt like थोड़ा सा बेड से बाहर निकल के I should make a video instead. So yeah. And this is a very good pair of jeans. I think this won't be available this time because ये 2 to 3 years पहले थी और मैंने स्टोर में से ली थी. So this denim jeans I won't be able to share the link. So you can go for this jeans, this mom jeans. You can pull up and roll up the ankle area, so it also give a very nice fitting and nice sharp curvy edges to your body. So yeah, you can go for this, and most of pear shape girls found themselves comfy in mom jeans only, so I think you should go for this. On second we have a very cute and my favorite, you can say a skinny fitted yet so comfy jeans which I bought it from Zudio, and this is from men's section. I mostly go for men's section denims because I don't find anything like crazy stuff in women's section. I'm talking about Zudio, not like H&M and Zara, so keep that in mind. If you are going for shopping to Max or like Zudio, you should go and also check it out some denims from men's section too, because it has some crazy stuff जहाँ से तुम कुछ अच्छी चीज़ पिकअप कर सकते हो. So it is basically a
like a normal denim. It is having some dark blue, you know, shading on the belt area. So this is a relaxed fit denim which I bought it from men's section, and this is relaxed fit in the size 32. And you might be wondering that how I find my size in the men's section. So what you're gonna do is check the zip area. If the zip area is long, so you can, you know, you can find your high-waisted jeans very properly. Then find your size. That I mostly go for 32 or 34. So I checked both of those size. जब मैंने दोनों size पहने, so 34 was little you know, loose from my waist. Sorry for the noise. So 34 was little loose from the waistline and वो thighs में से तो आ गया था. Then I checked 32. 32 was properly coming, but थोड़ा सा ही loose था, like as compared to 34. 32 थोड़ा सा loose था waistline से. So what you're gonna do is go to the tailor in your locality and make him do this. कि जो side area होता है, like ये जो यहाँ से line होती है ना, लाइक द पॉकेट्स, जो फ्रंट पॉकेट्स होती है और बैक पॉकेट्स के बीच में जो लाइन होती है, उन्हें कहना कि यहाँ से एक वी शेप ट्राइंगल बना के, यू नो, यहाँ से एक स्टिच कर दे जो भी इंचेस का तुम्हें चाहिए, लाइक 1 फिंगर इंच और 2 फिंगर. सो उन्हें बोलना कि इतना स्टिच कर दे, या फिर वो अपने हिसाब से यहाँ से एक ट्राइंगल बनाएंगे और उसे स्टिच कर देंगे. सो वो एक दिखेगा भी नहीं कि वो स्टिच्ड है और तुम्हें फिटिंग में भी आ जाएगा. एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं पहली टेलर के पास देती थी तो मैं देखती थी वहाँ पे कि वो कैसे कर रहे हैं, बट इस बार मैं उन्हें दे के चली गई तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बैक साइड से ना तो लूप्स काइंड ऑफ बना लिए. सो अभी जो लूप्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल है. अगर मैं इसे क्रॉप टॉप के साथ पहनूंगी ना तो बहुत ही ऑकवर्ड और वियर्ड लगेगा पीछे से. तो यू शुड, यू नो, गो फॉर टेलर. इफ़ यू आर गोइंग फॉर टेलरिंग और स्टिचिंग, देन मेक श्योर यू स्टैंड बाय देम. सो उससे क्या होगा कि उन्हें भी समझ में आएगा कि तुम्हें कैसा स्टिच चाहिए. सो वो भी गलत नहीं करेंगे और तुम भी कुछ गलती नहीं करोगे. सो मेक श्योर दैट यू डू दिस. Also, how you can check your size if you are going into men's section for your denim. So what you're gonna do is put your like arm like this. Make sure that your hand gets fitted into this waistline. So if you wanna move your hand, अगर ये नीचे नहीं गिर रही है then it's like a thumbs up. अगर ये नीचे गिर रही है, like मैं इसे इधर इधर यू नो मूव कर रही हूँ, अगर ये थोड़ी सी भी स्लाइड डाउन हो रही है या इधर से हो रही है, सो इट्स काइंड ऑफ लिटिल लूज. थोड़ी आएगी बट थोड़ी लूज आएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन चेक योर साइज. अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना फिटिंग रूम में जाने का, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन. सो ऑन थर्ड वी हैव अ वेरी क्यूट पेयर ऑफ फ्लेयर जीन्स विच आई रिसेंटली, मैंने इसे शो करा था अपने मिंत्रा हॉल में भी, डेनिम हॉल में. इफ यू हैवंट वॉच दैट हॉल देन प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट. आई विल मेंशन द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक इट आउट. एंड यहाँ पे वी हैव दिस वेरी नाइस पेयर ऑफ फ्लेयर जीन्स. वॉट आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक वॉज, ये मैंने उस हॉल में भी डिस्कस करी थी, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पे सुन लो कि आई वॉज थिंकिंग कि मेरा साइज अब थोड़ा सा पुट ऑन हो गया है, मैं 34 में तो शिफ्ट हो गई हूँ. बट यू नो, you have to keep this point in your mind that every kind of pattern will not fit you in the 34 size only. कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो कि उनका पैटर्न ही बैगीनेस में होता है, तो तुम ऑप्ट करो कि उससे थोड़ा सा कम साइज. जैसे कि मुझे क्या लगा था कि मेरा 34 साइज है, तो मैंने सोचा कि फ्लेयर जीन्स हो, मॉम जीन्स हो, स्किनी जीन्स हो, सब मुझे 34 में ही आएगी. बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि वो डेनिम का पैटर्न कैसा है. जैसे कि यहाँ पे फ्लेयर जीन्स है, सो फ्लेयर जीन्स आर मोस्टली, यू नो, कम्फी, वेरी रिलैक्स्ड, बहुत ही ढीली होती है, लूज होती है. सो मैंने इसमें 34 ले लिया और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और मैंने ट्राई भी बहुत टाइम बाद करा, तो मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर पा रही थी. सो what I am facing the problem is कि मुझे थाई में से तो फ्लेयर जीन्स इज ऑलवेज, यू नो, लूज, सो इट्स, यू नो, कमिंग वेरी इजीली टू माई थाइज. बट यू नो, आई एम फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन माई वेस्ट एरिया, जो कि इट्स लिटिल लूज. अब मैं यहाँ पे चेक भी करूँगी ना, इफ आई एम पुटिंग माई आर्म, यू कैन सी, जैसे मैंने पहले शो करा था कि वो एकदम फिट आ रहा था. अब यहाँ पे इट्स हैविंग सम स्पेस जो कि यहाँ पे लेफ्ट आउट है, एंड यहाँ पे इट्स, यू नो, अगर मैं मूव करूँगी अपना हैंड तो ये देखो, ये ऐसे गिर जाएगा. So it's, you know, it's not coming to your size. It will, you know, it will be a little loose either from the thighs से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा as they are pear shaped. So ये आएगा सिर्फ वेस्ट एरिया से. अगर थोड़ा सा भी लूज हो रहा है so वो समझ जाना कि तुम्हें वेस्ट एरिया से ही आएगा, और थाई से तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा. So you know, if I am putting my arm,
मैंने पहले वाले में शो करा था वो बिल्कुल सही आ रहा था, अब मैं इसको मूव करूँगी तो गिर गया. So according to this you can check. So this was by brand Tokyo-Tokis. Tokyo-Tokis also play a very much good game in kind of denim if I talk about, and this is in the size 34 as I told you what I did. And दिस इज हैविंग सम अमेजिंग पैटर्न जो कि अभी ट्रेंडी चल रहा था, लाइक फ्रंट पॉकेट्स का. एंड यू नो दिस इज काइंड ऑफ वेरी वाइड लेग जीन्स एंड आई लव द कलर. आई विल मेंशन द लिंक इसका, तो आई विल मेंशन क्योंकि इसका पॉसिबल है. सो दिस लिंक आई विल मेंशन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड इसको दिस इज कॉल्ड एज फ्लेयर जीन्स विच सूट्स our body type very perfectly because it kind of provide a very good cushioning from back side as we talk about, क्योंकि यहाँ से it kind of flatten our hip area and it kind of give a very smooth finishing and edges to our curvy shape. So yeah, you can go for this if you want to go. And yeah, keeping this aside, moving to our fourth and very my favorite option. So on fourth we have a very cute straight fit jeans which is by brand Tokyo-Tokis. और so ये भी मैंने मेरे हॉल में कवर करी थी, so तुम वहाँ पे भी इसे चेक कर सकते हो कि कैसी दिखती है. But we are talking like pear shape body, so I think a pear shaped girl must have this denim in her wardrobe because it is a straight fit denim. अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट भी है, so it kind of embrace your height, थोड़ा सा uplift कर देती है हाइट को. And it is having some ribbed edges from the knees, like knees से भी थोड़ी ribbed है. And it kind of fitted me, like it is having a good fitting और इसका material भी बहुत अच्छा है. So this is also in the size 34. What I'm gonna do now, again I'm seeing that thing, but again जिसमें मैंने पहन के देखा है. So it is coming up from my thighs, but again it is a very little थोड़ा सा loose from my waistline. अब मुझे पता कैसे पड़ेगा, like I'm putting my arm, जहाँ से वापस इतनी सी एरिया, यहाँ पे इतना सा एरिया थोड़ा सा क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है. सो इफ आई एम गोना मूव माई हैंड, थोड़ी सी गिर गई. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक. बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पे दैट हाउ टू चेक योर साइज. बहुत सारे हैक्स होते हैं. एक हैंड वाला हो गया, देन यू हैव लाइक नेक एरिया पे. नेक एरिया वाला मैंने कभी ट्राई नहीं करा है तो मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगी, बट यार दिस वन हैक आई हैव ट्राइड पर्सनली, सो यू कैन गो फॉर दिस. एंड मोस्टली ऑप्ट फॉर मॉम जीन्स, स्ट्रेट लेग जीन्स, वाइड लेग जीन्स. बट हाँ, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना जो कि मैंने मिस्टेक्स करी थी, कि पैटर्न के अकॉर्डिंग भी फ़र्क पड़ता है साइज़ पे, कि तुम्हारा साइज़ 36 है, 34 है, 30 है, 31 है, नो मैटर. पैटर्न के साथ साथ तुम्हारा हो सकता है कि साइज़ थोड़ा सा तुम्हें ऊपर नीचे करना हो, और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. अगर एक स्किनी जीन्स बहुत ही स्ट्रेची है, सो यू शुड गो फॉर 32. अगर तुम 34 हो तो तुम्हें 32 के लिए जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो पहले से एक स्ट्रेचेबल जीन्स है, और अगर तुम 34 में उसे स्ट्रेचेबल मानोगे तो वो काइंड ऑफ लूज और बहुत अच्छी सी फिनिश नहीं देगी अकॉर्डिंग टू मी. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर 32 इन केस. एंड मोस्ट ऑफ यू गर्ल्स माइट बी थिंकिंग कि आपने बोल तो दिया कि मेंस सेक्शन में जाके आप सर्च कर सकते हो कि अपने लिए क्या जीन्स ले, वहाँ से डेनिम ले. बट उसका भी एक तरीका है कि इफ़ यू वांट अ पैटर्न जिसमें बैगीनेस हो, या फिर स्ट्रेट फिटिंग की हो, या फिर काइंड ऑफ अ बॉयफ्रेंड जीन्स तुम ढूंढ रहे हो, सो तभी तुम मेंस सेक्शन में ट्राई करना. पर अगर तुम सोचो कि स्किनी जीन्स या फिर मॉम जीन्स तुम वहाँ पे ढूंढ लो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट फिट जीन्स होती है वो मोस्टली बॉयज़ कैटेगरी में भी आती है. सो या दैट्स द मेन रीज़न. और साइज़ वहाँ पे भी तुम ट्राई कर लेना. सो दीज ऑल 4 डेनिम्स विच आई डिस्कस्ड, ये तुम्हारी बॉडी को बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ अ वेरी गुड प्लेसमेंट देते हैं. तुम्हारी बॉडी स्ट्रक्चर को काइंड ऑफ वेरी शार्प एजेस देते हैं, आई शुड से. वाई? बिकॉज उनका एक पैटर्न है जो कि आई थिंक वो बने ही पेयर शेप बॉडी के लिए हैं, और वो ज़्यादातर अच्छे से सूट करते हैं पेयर शेप बॉडी पे. वाई? बिकॉज उनका जो पैटर्न है, एक तो वो हाई वेस्टेड है. आई मोस्टली रिकमेंड हाई वेस्टेड जीन्स फॉर पेयर शेप बॉडी. वाई? बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ अ वेरी हैवी वेट इन द बॉटम एरिया एंड वी आर अ लिटिल लाइटर फ्रॉम द अपर एरिया. सो इफ वी गो फॉर क्या बोलते हैं उसे,
वेस्ट लाइन फिटेड जीन्स लोगे ना, लाइक जो वेस्ट पे ही फिट होती है, सो वो काइंड ऑफ जब तुम बैठोगे वापस उठोगे तो तुम्हें क्या होगा, लाइक इसमें से तो वी फील वेरी टाइट, यू नो। हम इस जीन्स में भी थोड़ा सा हल्का सा एक वो टाइटनेस फील करते हैं, बट वो कम्फी होती है। क्यों कम्फी होती है? बिकॉज हमें वेस्ट लाइन से वो फिट मिल जाता है। बट जब हम लोअर वेस्ट लाइन की जीन्स पहनते तो हमें ना ही थाइस से कंफर्ट मिलता है और ना ही वेस्ट लाइन से कंफर्ट मिलता है। वो क्या होती है, नीचे से बार बार पुल डाउन होती है। मेनी ऑफ गर्ल्स मस्ट बी रिलेटिंग टू दिस पॉइंट कि जब हम बैठते हैं कहीं भी पूजा में या फिर कॉलेज में, स्कूल में, तो वो क्या होता है, एक वेस्ट लाइन से हमें वो कंफर्ट नहीं मिलता है। वो चीज़ बार बार पुल डाउन होती है और हम बार बार ऐसे रहते हैं, यार कुछ कुछ दिख तो नहीं रहा। सो वी काइंड ऑफ अ वेरी थोड़ा सा डाइसी रहते हैं कि यार क्या करें। सो आई थिंक हाई वेस्टेड जीन्स आर वेरी गुड परचेज इफ़ यू वांट टू गो। अभी बहुत सारे ट्राउज़र पैंट्स भी आने लगे जो कि हाई वेस्टेड है, सो यू कैन प्ले अराउंड विथ ऑल दोज ट्राउज़र पैंट्स ऑल्सो। सून आई विल बी मेकिंग अ हॉल ऑन ट्राउज़र पैंट्स, सो मेक श्योर you watch my videos and also you are staying tuned and take this issues and take this messages very normal because pear shape body is a kind of very beautiful body. लोग मरते हैं लाइक लिटरली जो एकदम स्लिम होते हैं, स्किनी होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं टू बिकम लाइक अ पेयर शेप बॉडी बिकॉज पेयर शेप बॉडी इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल बॉडी विच आई फील। बट इसमें थोड़ी दिक्कत होती है काइंड ऑफ वी फील वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज इन एट टाइम्स ऑफ व्हेन वी फाइंड बॉटम्स हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है एज वी आर पेयर शेप बॉडी। सो हमें थोड़ा सा उसे फाइंड करने में, पहनने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और चूज़ करने में दिक्कत होती है बेसिकली कि क्या आएगा, कैसे आएगा, यहाँ फिटिंग होगी कि नहीं, यहाँ फिटिंग होगी तो वेस्ट लाइन पे ढीला होगा, वेस्ट लाइन पे ढीला होगा तो ऑब्वियसली वहाँ से तो आएगा ही नहीं। सो या देयर आर सम प्रॉब्लम्स बट इसके सॉल्यूशंस हैं और सॉल्यूशंस हैं तभी हमें ऐसा बनाया है, तभी वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल बॉडी। सो एम्ब्रेस योर बॉडी एज यू आर। डोंट केयर कि दूसरा क्या है, दूसरी क्या पहन रही है, वो इतनी पतली है, वो ये, क्योंकि पेयर शेप बॉडी एक ऐसी बॉडी शेप है कि तुम ये सोचो ना कि पेयर शेप बॉडी है, मैं बहुत मेरे बॉटम एरिया से बहुत थिक हूँ या फिर वेट है मेरा बहुत ज़्यादा बॉटम एरिया से, तो थोड़ा सा अगर तुम्हारी बॉडी शेप ही वैसी है तो तुम कितना भी ट्राई कर लो वो शेप तो वही रहेगा, बस जो एक्स्ट्रा फैट है वो कट ऑफ होके यू कैन लुक गुड। I'm so sorry if you guys kind of felt like weirdness in my voice because I am going through viral, but मैंने सोचा कि video I should make because I want to be consistent. And yeah, that's it for today. Thank you for watching this video. I hope you loved this one. Comment me down if you face any problems जो कि मैंने बताई उसमें तुम्हें कभी कुछ issue लगता है या तुम कभी purchase करने जाते हो तो तुम्हें याद नहीं आता कि क्या point था याद रखने वाला। So make sure you like, subscribe to my channel, share it to your loved ones, share it to your peer shape girls, and also make sure that you are happy, you are confident, you are living your life, you are happy the way you style, the way you are. So till then, make sure you're watching my videos, you are staying tuned to my channel. So till then, bye bye.